परचेज या प्रोडक्शन पे जाता है, एंड दैट इज गोइंग टू अगेन टू द मटेरियल के रिक्वायरमेंट पे, फिर लेबर के रिक्वायरमेंट पे, फिर ओवरहेड के रिक्वायरमेंट पे, फिर सबको ऐड करके देन इट्स गोज टू द सीओजीएस। फिर उसके बाद अगर कोई सेल्स या एडमिन का एक्सपेंसेस है तो वहां जाएगा। ओके, एंड सबको ऐड करने के बाद इट्स गोज टू द इनकम स्टेटमेंट, एंड इनकम स्टेटमेंट एक साइड पे रेडी होता है। पहले फिर हमको कैश बजट बनाना पड़ता है, एंड कैश बजट नीड्स सम इनपुट फ्रॉम द कैपिटल बजट, और सबको इंक्लूड करके फाइनल जो हमारे पास चीजें रेडी होती है दैट इज कॉल्ड द बजटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। नाउ अब ये क्वेश्चन आपने एक बार रीड करना है। आई विल डू एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम द प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, एवरीथिंग वी विल डू फ्रॉम दिस। So can you please read this question, everybody? जी मेराज भाई, सलामकुम मेराज भाई, सॉरी मेरा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये क्वेश्चन एक बार रीड करें, मैं सारे बजट्स को अभी वो करूंगा। जी जी ठीक है, सारे बजट्स को इस पे हम लोग जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बोले थे कि हमारा जो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम लोग का जो बजट का स्टार्ट पॉइंट है वो हमारा सेल से बनता है। ठीक है, सेल जब हम फोरकास्ट कर लेते हैं, व्हेन वी फोरकास्टेड द सेल, फिर हम उसके बाद कहाँ जाते हैं, प्रोडक्शन बजट पे जाते हैं, प्रोडक्शन या परचेज। ठीक है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ वी आर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट्स डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री। So if it is a manufacturing, first it will go to sales, then we will project the productions, then we require the raw material, and raw material, then we require the labor and overhead parallelly. Then we add these things, it all goes to the one budget line that is called the COGS, budget line, cost of goods sold. Then we can take another indirect expenses budget. Okay, then we will take all this budget into the budgeted income statement, and this part once finished, then from these informations may be required this for the cash budget. So based on this information we will go to the cash budget. So cash budget we will prepare, and thus cash budget will take the input from capital budget also. Okay, so from the cash budget we will prepare the budgeted cash flow. Then after taking budgeted income, budgeted cash flow, we will prepare the budgeted balance sheet. एक जगह एक पल। ठीक है, तो यहाँ से हम बजटेड बैलेंस शीट बना लेते हैं। दिस इज ऑल अ पार्ट एंड कंपोनेंट ऑफ मास्टर बजट। ये सारा जो मिला के जब बनता है तो वी कॉल्ड इट मास्टर बजट। अभी हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर थिंग अबाउट द budget from these questions. So I just requested to read this question and we will be going with one by one. Okay, ये आपको स्क्रीन दिख रही है? विराज भाई नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है, बस आपका विजुअल ही आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, सॉरी। So the screen is like this. Okay. First I said this is the master budget का। When I say the master budget, तो मास्टर बजट पे हमारा क्या क्या आता है वो देखें। मास्टर बजट पे हमारा आता है
manufacturing industry, we are taking about the example of manufacturing industry. So in the manufacturing, either we can take it the sales will take the input from, first we will forecast the sale, then we will prepare the production budget based on the sales information, then we will prepare the raw material budget based on the production informations, and thus parallelly we have to prepare for the labor and other overheads. Okay, that is manufacturing overhead. Then it comes all together, we call it COGS when we club this, and independently we will prepare the budget for the selling other expenses budget like the selling and administrative budget. Then it goes to the income statement. So in the master budget, we have mainly three things we have to prepare. When it comes to the master budget, we have to prepare the three things mainly. The first budgeted income statement, then second is the budgeted cash flow, the third is the budgeted balance sheet. So that what is the master budget or comprehensive budget. Comprehensive budget. So this is the structure what we are going to discuss with one example. So I take that Rocket Corporation is a manufacturer of the table sold to the school, restaurant, hotel and other institutions. So there is a company who deals in the tables, and they are actually selling to the various people. In the table tops are made by the Rokat. टेबल टॉप्स जो है रुकात बनाता है, बट द लेग्स वाज परचेज फ्रॉम द आउटसाइड. तो लेग्स वो बाहर से खरीद के लाता है. बोला असेंबली डिपार्टमेंट टेक्स अ मैन्युफैक्चरिंग टेबल टॉप्स एंड अटैच द 4 परचेज्ड टेबल लेग्स. यानी एक टेबल पे एक ऊपर का टॉप लगता है, नीचे 4 टेबल्स लगते हैं. ठीक है, नीचे 4 टेबल्स लगते हैं. सारा यू कैन सी. सारा आप हिंदी बोलते हो? Hello. Okay, yes, I can see. You speak Hindi or no? Yes, okay, no problem. So, what I was talking. So here the assembly department takes a manufacturing tables, attach the 4 purchase leg. तो एक ऊपर का head, नीचे उस पे 4 legs लगेंगे, and he takes 20 minutes as a labor. तो एक टेबल के बनाने का टाइम कितना है? 20 है. उसके बाद बोल रहा है कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी फॉर प्रोड्यूसिंग इनफ टेबल. इतना बनाता है कि 40% ऑफ द नेक्स्ट मंथ का रॉ मटेरियल उसके फिक्स्ड और 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स आर इन द फिनिश गुड्स इन्वेंटरी. यानी वो आज इतना बनाएगा कि आगे के महीने का 40% उसको अपने इन्वेंटरी पे रख पाएगा. He can able to keep in his inventory. Then it comes to the Rocket also purchase the sufficient raw material. When it comes to the raw material, he purchased the sufficient raw material so that he can keep 60% inventory for the following month's scheduled productions. So now if he is thinking to produce, he has some schedules, so he will keep the 60% of the following month's productions. He will keep that much. Now the question is given that he has a sale of 3 months, July, August, September. So 2300, 2500 and 2100. ठीक है. अब बात हो गया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर दिया हुआ है. तो क्वेश्चन हमसे पहले पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टेबल कितना प्रोड्यूस करेगा. देन वी विल कम कैलकुलेट हाउ मच रॉ मटेरियल ही रिक्वायर्ड. फिर मैं आगे आएंगे हम लोग, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि हाउ मच लेबर आवर्स ही रिक्वायर्ड. ऑल दिस थिंग्स वी आर टेकिंग फ्रॉम द सेम एग्जांपल. सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन पे रॉकेट है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, लेग कहीं और से लाता है. उसके बाद जो है उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो खुद बनाता है, और सारे की फिटिंग पे उसका 20 मिनट्स लगता है, और वो इतना स्टॉक लगता है ताकि उसके नेक्स्ट मंथ के सेल पे 40% वो अपने क्लोजिंग इन्वेंटरी से ये कर सके, उसको कवर अप कर सके. फिर ऑन द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन इट कम्स टू द रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के टाइम पे वो क्या करता है कि अपनी जो इन्वेंटरी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसका वो क्या करता है कि 60% वो अपने पास रखता है. ठीक है, अपने पास 60% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स का रखता है. ठीक है, तो सबसे पहला हम काम करने वाले हैं
कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी प्रोडक्शन। तो आपने कौन से महीने का मांग रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर जुलाई। तो आपसे जुलाई का मांग रहा है, सॉरी, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर अगस्त। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट करते हैं, फिर हम लोग फटाफट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमसे अगस्त का मांग रहा है। तो अगस्त की अगर अगस्त का सेल, पहले अगस्त का हमसे मांग रहा है क्या? हमसे अगस्त का प्रोडक्शन मांग रहा है कि अगस्त में हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो रूल के हिसाब से क्या रूल ये है कि उसके पास इतना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए ताकि वो आगे वाला सेल को वो कवर कर सके। तो अब वो लिखेगा ओपनिंग, पहले लिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, फिर लिखेगा सेल्स। अब इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसको रिक्वायर्ड यूनिट पता चल जाएगा। देन आफ्टर व्हाट ही विल डू, इफ ही हैज सम ओपनिंग, तो वो ओपनिंग माइनस करेगा, देन ही विल गेट द परचेज। तब उसको क्या पता चलेगा? परचेज पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम बातें करते हैं कि चलो, सबसे पहले बोला है कि वो इतना अपने क्लोजिंग स्टॉक में रखे ताकि वो आगे वाले मंथ का 40% सेल कवर कर सके। इसका मतलब है कि आगे का सेल कितना है? 2100 सेल है। तो 2100 सेल का वो कितना कवर अप कर सके? 40% तक कवर अप कर सके। तो इसका मतलब कि 40% ही हैज टू कीप एज अ स्टॉक। और उसके बाद सेल्स ऑफ अगस्त लेना है। तो सेल ऑफ अगस्त में क्या लेंगे? 2500 आई विल कॉपी। तो मेरे को ये पता चल जाएगा, नाउ ही इज हैविंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ 3340। अब बात आती है कि ओपनिंग इस क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग नहीं दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि जब हम ये अगस्त पे निकाल रहे हैं, तो अगस्त निकालने से पहले अगर उसने जुलाई पे कैलकुलेशन करा होगा, जुलाई पे अगर उसने कैलकुलेशन किया होगा, तो उसने अपने क्लोजिंग स्टॉक पे क्या लिखा होगा? अगस्त के सेल का 40%। अगस्त के सेल का 40%, यानी अगस्त का ये सेल है, इसका वो 40% कंसीडर करेगा। दैट इज व्हाट द जुलाई क्लोजिंग स्टॉक। तो जो जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगस्त के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सो आई विल जस्ट सिंपली कॉपी कर लिया। ठीक है जी, तो हमने क्या कर लिया, ये हमें पता चल गया। अब इसका मतलब है कि हमको इधर अब मेरे को प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमको 3340 माइनस 1000, यानी कि 2340 यूनिट्स वी हैव टू प्रोड्यूस। तो ये जो बजट बना, दिस बजट वी कॉल्ड प्रोडक्शन बजट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बजट बोलते हैं। प्रोडक्शन बजट। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल था? हमारे पास सेल्स फोरकास्ट अवेलेबल था, बाकी सारे रिलेशंस अवेलेबल थे। तो हमने उस रिलेशंस को यूज करके हमने क्या कर लिया? हमने अपना प्रोडक्शन निकाल लिया। किसी को यहाँ तक समझते पे कोई दिक्कत है तो बताएं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? तोहिद भाई ठीक है महेश भाई। ठीक है ना? जी हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, तो इसके आगे का पता नहीं। आगे के लिए हम लोग है ना साथ में है, टेंशन नहीं लेने का। आपने जो आज क्वेश्चन भेजा था, हम लोग उस पर कैश बजट भी प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, तो यानी अपनी तीनों चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो ये वाला पोर्शन अगर क्लियर है, देन आई कैन लॉक इट। तो ये प्रोजेक्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन बजट। अब हम ये, सैयद भाई आपको कोई डाउट है? सैयद भाई आपकी आवाज तो धीरे स्लो आ रही है। नहीं, ये इसको क्वेश्चन को मैं स्टार्टिंग से कैचअप नहीं करा, तो नहीं, अभी
अभी टाइम है, अभी टाइम है, क्योंकि ये क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी टाइम है, अभी हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। आप एक बार फिर क्वेश्चन करो, कोई कोई हड़बड़ी नहीं है। वी आर लर्निंग द कंसेप्ट ना। एक बार कंसेप्ट पता चल जाएगा, फिर दुनिया का कोई क्वेश्चन डिपेंड हो, ठीक है, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है। सारा आप भी रीड कर लो प्लीज। अभी क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? सेठ भाई क्वेश्चन जी जी मेरा भी पढ़ा। अभी अब जो हमने सॉल्यूशन किया उस पे आप बोलो। उस सॉल्यूशन पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बोलो। ये सॉल्यूशन मैंने किया। तो व्हाट आई टेकन, मैंने क्या लिया, सबसे पहले सेल्स, सबसे पहले क्या लिया, क्वेश्चन बोलता है कि आप इतने स्टॉक अपने पास में रखते हो कि आगे के मंथ का आप 40% सेल कवर कर सको। तो इसका मतलब आगे का सेल 2100 का है, तो आप 40% का मतलब 840 आप कवर अप कर पाओ। तो ये आपको रिक्वायर्ड स्टॉक हो गया। क्या हो गया? रिक्वायर्ड स्टॉक हो गया। फिर सेकंड पार्ट में बोला कि आपने सेल क्या करा, तो मेरे को सेल फोरकास्ट है 2500। तो ऑल टुगेदर इफ आई वांट टू मीट दिस टू एक्सपेक्टेशन कि क्लोजिंग पे मैं क्या रखूं, उसके बाद मैं सेल क्या बनाऊं, सेल में इतना करूंगा, इसका मतलब है कि मेरे को 3340 मेरे को चाहिए होगा। अब इतना चाहिए होगा। अब इसमें से हमको पता करना था कि ओपनिंग मेरे पास अभी है कितना। तो क्वेश्चन में बोला कि देखिए कि आगे वाले महीने के 40% के बराबर आप स्टॉक रखते हो। तो मैंने पीछे चेक किया, अच्छा जुलाई में कितना स्टॉक रखा होगा उसने। तो अब मैं गया जुलाई वाले से पूछने, रुक जा जुलाई वाले बता तेरा क्लोजिंग कितना है। तो जुलाई वाला बोला भाई ऐसा है कि अगस्त ने मेरे को बताया था ही इज गोइंग टू सेल फॉर 2500, तो बेस्ड ऑन द सेल फोरकास्ट आई गेट 1000 एज अ क्लोजिंग स्टॉक। सो आप इसको अपने ओपनिंग में कंसीडर कर लो। तो वो 1000 मैंने अपना ओपनिंग में कंसीडर कर लिया। अब बात आया कि 3340 हमको चाहिए था, उस पर हम 1000 ऑलरेडी ओपनिंग पे ला लिया, यानी ओपनिंग है मेरे पास। तो अब जो बाकी चाहिए होगा उतना का हम प्रोडक्शन करेंगे। उतना का क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो ये अब क्लियर हो गया गौस भाई? नीरज भाई हम सेल्स में क्यों करें, उसने क्वेश्चन में कहा है क्या कि सेल्स का ही 40% फोकस करेंगे। हाँ इसीलिए तो आपको बोला था क्वेश्चन को थोड़ा क्लियरली पढ़ो। ये वाला लाइन को पढ़ो आप। क्लियर है, अभी क्लियर है। क्लियर है? हाँ चल ओके। हाँ। तो आगे अब बात आती है कि रोशन भाई, रोशन भाई बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप मेरे को लेबर बजट बना के दिखाओ। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप मेरे को लेबर बजट बना के दिखाओ। ये इंफॉर्मेशन देखो आप।
मेरे भाई कौन सा मंथ के लिए बनाए? कौन से मंथ के लिए बनाएं? अगस्त के लिए बनाएं, क्योंकि हम अभी अगस्त पे ही सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक। बता दें, पर यूनिट हाउ मच आवर्स वी रिक्वायर्ड। एक यूनिट बनाने पे कितना मिनट लगता है? 20 मिनट। हमने प्रोडक्शन कितने करने हैं? 2340। इसका मतलब है कि हमको कितना मिनट्स रिक्वायर्ड होगा? तो दैट इज इन मिनट्स। तो टोटल मिनट्स आई कैन से। अगर हमें आवर्स में चाहिए होगा तो डिवाइड बाय 60। अगर क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट देख लिया, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 20% जो है आइडल टाइम है। आप समझते हैं ना, हम लोग ऑफिस में रहते हैं तो हमको 8 घंटा काम करते हैं, पर प्रोडक्टिव आवर कितना होता है हमारा? 3 घंटा। 3 घंटा भाई, बाकी तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, और सीएमए का होमवर्क है, और बाकी जो बच गया तो काम कर लेंगे। तो 20% अगर मेरा आइडल टाइम है तो व्हाट हाउ मच आई शुड प्लान एट 20%? इज इट? हाँ, आइडल टाइम है तो हम क्या करेंगे? यानी आप बोल रहे हो कि हम प्लस 20% प्लस इसका 20%, यही बोल रहे हो ना? आपको नहीं लग रहा कि आप गलत बता रहे हो? तो दिमाग लगाएं सर। तो आप जो जा रहे हो, यू आर नॉट पुटिंग द राइट नंबर्स। आप राइट नंबर अगर आपको कोट करना होगा तो आपको बोलना होगा कि भाई जब वो 1 घंटा 100 घंटा काम करता है, 20 घंटा आइडल होता है, इसका मतलब एक्चुअली ही इज वर्किंग फॉर 80। So actually you have to quote your hour like this, divide by 0.8. You have to quote 975 hours. Then you multiply 20%, 20% चला गया, नुकसान हो गया, इसका मतलब है कि 780 यू आर गॉट द प्रोडक्टिव आवर्स। तो आपके प्रोडक्टिव आवर्स पता चले कितने लगे? यस। और आप पहले जो बता रहे थे वो गलत है, ठीक है? तो आप ये टोटल आवर्स अगर आपको कोई कोट करने बोलेगा, देन यू हैव टू गो इन दिस वे। इज इट ओके फॉर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है भाई? पूछ लो भाई। नहीं नहीं, मेरा जो है आपने कैसे किया वो पता नहीं है, जो लेबर का। देखो यहाँ तक क्वेश्चन में था इंफॉर्मेशन, तो हमने यहाँ तक में कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चन में बोला था कि पर यूनिट 20 आवर्स लगता है। एक चेयर बनाने का असेंबलिंग टाइम है 20 मिनट्स, ठीक है? और मैंने 2340 यूनिट्स बनाए हैं, असेंबल किए हैं। इसका मतलब है कि 46,800 मिनट्स चाहिए। अब मैंने उसको घंटा में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे को पता चल गया कि एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो आई हैव कन्वर्टेड इनटू द आवर्स, तो आवर्स 780 आ गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि देयर इज एन आइडल टाइम ऑफ 20%। द क्वेश्चन इज प्लेइंग अ ट्रिक। क्वेश्चन वांटेड टू नो कि आप जब बंदे हायर करोगे तो आप कितने आवर्स के लिए हायर करोगे, ताकि क्योंकि यू हैव टू पे द मनी, तो यू हैव टू मेक द प्रोविजन फॉर आइडल टाइम, ठीक है? जी तो जी। आइडल क्या होता है? जब आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में 8 आवर्स जाते हो, और ऑफिस में कहा जाता है कि आपका 20% आइडल टाइम है। इसका मतलब है कि 8 घंटा में आप 8 घंटा का अगर ऑफिस आवर और टोन टाइम है, इसका मतलब है कि आपको ऑन एन एवरेज 1.5 आवर मिलता है अपना डेली रूटीन वर्क करने के लिए। लाइक खाना खा लो, इधर उधर कर लो, जी जी। यानी 1.6 आवर इज नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। अच्छा, तो ठीक टोटल है? और तो दैट व्हाट वी आर कंसीडरिंग।
total are this is productive hours unit. This is the productive hours unit. okay. But you have to 20%. plan including, yes, you have to make the provision for 20% as a, you have to make the provision for 20% as an idle time, ताकि आप अपना काम आसानी से कर सकोगे, ताकि आप करेक्ट प्रोजेक्शंस कर सकोगे, करेक्ट कॉस्टिंग कर सकोगे। ठीक है, अगर आप 780 पे जाओगे देन आपका क्या हो जाएगा, आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा, आपको रश ऑर्डर करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव नॉट प्लान्ड वेल, यू हैव नॉट प्लान्ड वेल, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर रश आवर प्रोडक्शन। तो ये सारे चीज आपको कंसीडर करने होते हैं व्हेन यू आर प्लानिंग द लेबर बजट। तो आप क्या करते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, वी कॉल्ड इज लेबर बजट। इस पे किसी को कोई डाउट है अब? नो। नाउ अब मेरे क्वेश्चंस है कि आप मेरे को ये बताओ, मेरे क्वेश्चन है, अब मेरे को बताना है, वी हैव टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट, सॉरी, अब मेरे को बनाना है रॉ मटेरियल बजट, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल ट्रिकी। तो आप थोड़ा ध्यान देना, आपको अब बनाना है मटेरियल बजट। आपको क्या बनाना है, मटेरियल बजट बनाना है। तो मटेरियल बजट के लिए आपको हर महीने का प्रोडक्शन चाहिए। क्या चाहिए, हर महीने का प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, आपको क्या करना है, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट मंथ का जो प्रोडक्शन है, यानी सितंबर पे जो प्रोडक्शन होने हैं, उसमें जितनी यूनिट रिक्वायर्ड है उसका 60% यू हैव टू कीप एज क्लोजिंग स्टॉक। देन अगेन आई विल आस्क यू टू रीड अ क्वेश्चन एंड आई एम हाईलाइटिंग व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू रीड। ये वाला लाइन से ये वाला लाइन तक को एक बार पढ़ने का है, यहाँ से यहाँ तक को आप एक बार पढ़ो, ये वाला लाइन पढ़ने का है, क्योंकि दिस इज अ रियली अ गुड लाइन। तो हमको चाहिए होगा प्रोडक्शन फॉर एवरी मंथ। चलिए अब हम निकालते हैं प्रोडक्शन फॉर एवरी मंथ। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक चाहिए जुलाई अगस्त सितंबर का, जुलाई अगस्त और सितंबर का, ठीक है। तो हमारे पास सितंबर के आगे का सेल नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन पे, तो हम एक डमी नंबर्स लेंगे फॉर अगस्त अक्टूबर के सेल के लिए। हम एक डमी नंबर ले रहे हैं इसके सेल के लिए, दिस इज माय डमी नंबर, अक्टूबर का सेल डमी नंबर है। तो देखिए, जब सबसे पहले जुलाई पे मेरे को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो अगर जुलाई पे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो हम क्या चाहिए होगा, हमको सारे मंथ के जो सेल्स चाहिए वो मैं यहाँ से लिख ले रहा। जुलाई पे 2300 के सेल है, अगस्त पे 2500 के सेल है, सितंबर पे हमारे 2100 के सेल है, ठीक है। अब ये नंबर नहीं पता तो मैं आई एम कंसिडरिंग दिस 3000 एज अ डमी नंबर, तो ये नंबर हमारा डमी है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास क्लोजिंग सबसे पहले फोरकास्ट करना है, तो आप क्लोजिंग कैसे फोरकास्ट करोगे, फॉलोइंग मंथ का 40%, फॉलोइंग मंथ का 40%, तो फॉलोइंग मंथ का 40%, फॉलोइंग मंथ का 40%, तो ये आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया। फॉलोइंग मंथ का 40%, फॉलोइंग मंथ का 40% आपने कर लिया। नाउ अब आपको चाहिए था ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में बोल दिया था कि जब जून क्लोज हुआ था तब आपके पास 1900 का स्टॉक था। व्हेन द जून वाज क्लोज यू हैव 1900 का स्टॉक, और बाकी जो है अगस्त का जो क्लोजिंग है वो, सॉरी जुलाई की जो क्लोजिंग है अगस्त के लिए ओपनिंग हो जाएगी, एंड द सेम वे जो अगस्त के लिए क्लोजिंग है वो सितंबर के लिए ओपनिंग हो जाएगी।
ठीक है, तो ये चीजें हमने कर ली है। अब यही चीजें यहाँ भी आएंगी, ठीक है। तो जो सितंबर की क्लोजिंग है वो अक्टूबर के लिए ओपनिंग हो जाएंगे, और क्योंकि हमारा सारा फोकस ये अगस्त के सेल पे है तो हम अगस्त पे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि आपको प्रोडक्शन क्या क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड यूनिट पता चल गया। रिक्वायर्ड यूनिट का मतलब क्लोजिंग प्लस सेल, तो मेरे को रिक्वायर्ड यूनिट पता चल गया। तो यहाँ पे आया 3300, 3340 एंड 33100 एंड 3000, ठीक है। अब मेरे पास क्लोजिंग दिया हुआ, ओपनिंग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा प्रोडक्शन। तो ये मेरे को प्रोडक्शन पता चल गया, ये मेरे को क्या पता चल गया, प्रोडक्शन पता चल गया। इस इंफॉर्मेशन से मेरे को प्रोडक्शन पता चल गया। तो इस प्रोडक्शन को पता चल गया, लेकिन अब मेरे को पता करना है कि कितना लेग्स चाहिए, लेग्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो हर चेयर पे 4 लेग्स चाहिए, तो यानी ये 1400 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इस तरह करके हमने लेग्स रिक्वायर्ड पता कर दिया। फिर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो जुलाई पे कौन सी, जुलाई पे क्लोजिंग स्टॉक कौन सी होगी, अगस्त के प्रोडक्शन का 60%, अगस्त के प्रोडक्शन का 60%। तो ये मेरा क्लोजिंग हो जाएगा। अब मेरे पास ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा, ओपनिंग लेग्स। तो ओपनिंग में लेग्स क्या है मेरे पास, देखिए ओपनिंग में जो लेग है, जून की जो क्लोजिंग होगी वो जुलाई की ओपनिंग हो जाएगी। तो जून की क्लोजिंग थी 4000 की, तो हमने 4000 ले लिया। अब आ जाते हैं हम अगस्त के लिए ओपनिंग। तो जो जुलाई की क्लोजिंग है वो अगस्त के लिए ओपनिंग है, एंड सेम वे हम ले लेंगे जुलाई की जो क्लोजिंग है वो हमारे सितंबर के लिए ओपनिंग है। तो इससे मेरे को ये पता चल गया, हाँ जी भाई मेरे ये प्रोडक्शन, ये हमारे पास लेग्स जो है अवेलेबल है, ओपनिंग लेग्स है, यानी अवेलेबल लेग्स हैं ऑलरेडी। तो अब जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा, इसका मतलब होता है कि मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आपको जो ये चाहिए, तो आपको ये पता चल गया कि हाँ जी भाई रिक्वायर्ड आपके लिए कितना कितना है, 11,000, 15,000 एंड 14,000 आपके पास रिक्वायर्ड है। बट ऑलरेडी आपने 4,000 का आपके पास बैलेंस था, ओपनिंग का बैलेंस था, यहाँ पे 5,000 का था, यहाँ पे 5,000। इसका मतलब ये है कि इतना हमको लेग्स बाहर से परचेज करना पड़ेगा, परचेज फ्रॉम आउटसाइड। तो ये हमारा जो बजट बनता है, ये हमारा मटेरियल बजट कहलाता है। तो मटेरियल बजट पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। हमारा रिक्वायरमेंट अभी भी अगस्त की है, हमारा रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट चीजें ऐड करी, वो ये थी कि सितंबर पे हमने एक सेल्स नंबर फोरकास्ट करके दिया था कि सेल पे हमारा अक्टूबर पे सेल 3000 है। क्यों चाहिए था, क्योंकि हम सितंबर में कितना स्टॉक मेंटेन करेंगे हमारे पास उसका कोई क्लू नहीं था। तो हमने क्वेश्चन पे क्लू देने के लिए अगस्त अक्टूबर में सेल रखा 3000 का, तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का आइडिया मिल गया। हाँ, इसका मतलब है कि हमको 1200 क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ से चीजें कर ली, तो अब मेरा यहाँ पर जो चीजें निकल के आया था वो ये निकल के आया कि क्लोजिंग प्लस सेल्स पता चल गया। इसका मतलब कि इतना यूनिट तो हमको चाहिए ही चाहिए अपने पास, आउट ऑफ विच मेरे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है, जो कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जून जब क्लोज हुआ था तो आपके पास 1900 फिनिश गुड्स आपके हाथ में था। तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्शन कुछ कम होंगे। फिर सेकेंड लेवल पे क्या हुआ, जो हमने अभी
जो अगस्त पे का जो सेल है उसका 40% एज अ फोरकास्ट रखा ताकि जुलाई पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन जाए। तो इस तरह करके हमने बैलेंसिंग फिगर पे सब में प्रोडक्शन निकाल लिए। अच्छा, हर बार जब भी आप एक टूल बनाओगे, एक टेबल बनाओगे, तो आपको 4 लेग्स चाहिए। तो आप 4 लेग से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ लेग्स पता कर लेते हो कि आपको टोटल नंबर ऑफ लेग्स अभी कितना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिर अब आप चेक करते हो कि आपको अपने पास स्टॉक कितना रहना पड़ता है ताकि आप जो है आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन नहीं आओ। यू आर प्लानिंग इन वेल इन टाइम, ताकि आप प्रॉब्लम में नहीं फंसो, ताकि आप प्रॉपर टाइम पे रीऑर्डर हो जाए और आपका प्रोडक्शन हैम्पर नहीं हो। तो आपने सोचा कि जितना हमारा नेक्स्ट मंथ के सेल पे, जितने मेरे नेक्स्ट मंथ के प्रोडक्शन पे रिक्वायर्ड है, उसका मैं 60% अभी एज अ स्टॉक अपने पास रखूंगा। तो आपने पता कर लिया था कि आपको 9360 लेग्स चाहिए थे अगस्त के प्रोडक्शन के हिसाब से। इसका मतलब है कि उसका 60% यानी 5616 लेग्स आज अपने हाथ से बना के डाल दिया। फिर उसी तरह हमने अगस्त के लेग्स निकालने के लिए हमने क्या किया, सितंबर पे जितना लेग्स रिक्वायर्ड था उसका 60% निकाल दिया। एंड सेम डे हमने क्या किया, हमने सितंबर पे लेग्स निकालने के लिए हमने क्या किया, जितना अक्टूबर पे लेग्स रिक्वायर्ड था उसका 60% निकाल दिया। अब हमने ये बोल दिया, हाँ जी भाई, इतना तो मेरे को क्लोजिंग रखना है और इतना मेरे को प्रोडक्शन में चाहिए। तो ऑल टुगेदर मेरा रिक्वायरमेंट 11,216 का है, बट मेरे पास 4,000 लेग पहले से है। इसका मतलब है कि 7,216 अभी बाई कर लेते हैं। फिर जब अगस्त आएगा तो अगस्त में मेरे को चाहिए 15,000, बट मेरे पास स्टॉक में ऑलरेडी 5,616 है। अब मेरे को फर्दर मार्केट से बाई करना पड़ेगा 9,648। सेम डे अब हम बात करते हैं कि सितंबर में मेरे को चाहिए कितना, 14,160, बट उसके अगेंस्ट में मेरे पास 5,904 लेग्स है। इसका मतलब ये है कि अब जो हमको अलग बाहर से लेग्स जो बाई करने पड़ेंगे, 8,256 लेग्स बाई करने पड़ेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्शन, ये हमारा मटेरियल परचेज बजट बन गया या मटेरियल बजट बन गया। अभी आप बताओ, कोई आदमी को यहाँ पे कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए। हाँ, जी जी जी, हाँ। जुलाई पे नहीं, जून एंड पे था। आप क्वेश्चन देखें, जून का एंड है वो। जून एंड पे था, जुलाई के बिगनिंग पे था। और सॉरी, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो कैलकुलेशन करके लाया, सॉरी। हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ बोलो। ये कैलकुलेशन करके लाए थे क्योंकि हमने अगस्त में 2,500 का सेल्स फोरकास्ट है हमारे पास। हाँ 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 हाँ। इतना आपको मेंटेन करना है, इट इज नॉट इन योर हैंड, यू हैव टू मेंटेन। आप जिसको फ्लोट नहीं बोलते हो पेटी कैश में, इतना तो आपको रखना ही चाहिए। इट्स लाइक अ फ्लोट, इट्स लाइक अ बफर। और ये आप इसलिए रखते हो ताकि वो आप आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्शन रन आपका खराब नहीं हो। हाँ, तो अरे रोहित भाई, बताओ भाई, क्या है दिक्कत, क्या बताइए। नहीं बता भाई, बस मैं वही सोच रहा था, आपने अक्टूबर का फिगर ले लिया है और शायद उसका इफेक्ट नहीं होगा क्या वो सितंबर के सेल पे, नहीं नहीं जो वो, भी, सॉरी, सितंबर। अरे भाई हम मैं तो एक्चुअली समझा नहीं। नहीं, ये मैंने इसलिए लिया था एक डमी नंबर, क्योंकि मेरे को पता करना था कि भाई अगर अक्टूबर में कोई सेल होता तो हमको सितंबर में तो क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ता। और क्वेश्चन में अक्टूबर पे का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने बेस लिया है टू एक्सप्लेन द इंटायर कंसेप्ट। तो क्वेश्चन में थोड़े से एडिशंस है। क्वेश्चन में अक्टूबर के सेल नहीं थे तो मैंने अक्टूबर के सेल दे दिया ताकि आप पूरी चीजों को समझ सको। नहीं पर जी, 4,000 लेगा तो कैलकुलेशन विल गेट चेंज ना।
आप देखो कैलकुलेशन चेंज हो जा रहा है। आप कुछ भी नंबर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वट एवर द नंबर यू वांट यू कैन टेक, बिकॉज सारा फॉर्मूला लिंक है। आप जो बोलोगे मैं वो नंबर ले लूंगा with just a hypothetical numbers. This 3000 has nothing to do. We are working on this actually. अभी हमारा हो गया प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, मटेरियल बजट, ठीक है। अब हम आई थिंक हम लोग अगर सेम क्वेश्चन सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को वो भी मिल जाएगा। जी मतलब मैंने किया है, मतलब अपने तरीके से, पता नहीं, पर मुझे 9000 कुछ चेंज मिल रहा है, पर सही आंसर नहीं मिल रहा है। पता नहीं मतलब क्या है। किस पे? इसी क्वेश्चन पे हाँ सेम इंफॉर्मेशन मैंने सब कुछ। हाँ, पर मैंने आपके जैसा वो ये नहीं किया है, जैसे कि अपने सारे डिटेल्स लिए हैं। हाँ, तो आपने क्या मैंने स्किप बस किया वो बताओ। मैंने बस जो है रिक्वायर्ड मटेरियल को नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर लिया है और उसका 60% ले लिया बस। तो पहले ये बताओ कि आपने सितंबर में आपका प्रोडक्शन कितना आया? रिक्वायर्ड सेल्स तो दूर की बात है, आप प्रोडक्शन निकाले कि नहीं निकाले? रिक्वायर्ड सेल्स से आपको मतलब ही नहीं था। मतलब ये है कि आपको पीछे आना है, प्रोडक्शन बनाना है। अब प्रोडक्शन पे रॉ मटेरियल का नहीं, कंजप्शन होता है। हाँ जी, मैंने वो नहीं बनाया प्रोडक्शन। हाँ, तो वो गलत हो गया भाई, वो शॉर्टकट जी नहीं हुआ, वो गलत हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 अब आप बना सकते हो, बिकॉज 7 जो है ना, इस क्वेश्चन नंबर 7 हैज ऑल द रिक्वायरमेंट गिवन। Question looks the same, but still you need to work because this question has little changes. Question number 7 you can do. Looks like same, but you have to read and do. ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि देयर इज अ प्रोडक्शन फॉर अगस्त एंड सितंबर इज गिवन। अगस्त एंड सितंबर is given, and the same time the question has a raw material inventory is 4200 as on 31st July, as on 31st July. So what is going to be here? आप इस क्वेश्चन में ये चीजें समझो। आपके पास क्या बोल रहा है? जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेल्स है अगस्त पे बोल रहा है, एज्यूम कर रहा है कि अगस्त पे सेल है 1600 का, सितंबर पे जो सेल है 1800 का सेल है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है जुलाई पे दे दिया हुआ है, जुलाई पे दे दिया हुआ है। जुलाई पे बोल रहा है कि आपके पास 4200 लेग्स थे, तो आपने 4200 लेग्स यहाँ कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये 1600 का प्रोडक्शन है तो इसमें लेग कितना चाहिए होगा?
हर यूनिट के लिए चार्ज चाहिए होगा। इसका मतलब है कि इसमें रिक्वायर्ड यूनिट जो होगा, रिक्वायर्ड लेग्स होगा, वो कितना होगा 6400 और इधर कितना होगा 7200। अब बात ये होती है कि अगस्त पे हमको क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना पड़ेगा 7200 का 60% वी हैव टू मेंटेन द क्लोजिंग का स्टॉक, ठीक है। और जो जुलाई की क्लोजिंग है वो हमारे, तो हमको कितना ऑल टुगेदर लेग्स चाहिए होगा, ये लेग्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। अब मेरे को लेग्स चाहिए कितना होगा, मेरे को ये प्लस ये चाहिए होगा, यानी लेग्स आई नीड हाउ मच 10,720, वेयर एज आई हैव एन ओपनिंग लेग्स, whereas I have an opening balance of legs is how much, ये जो क्लोजिंग था जुलाई का, अभी मेरे पास क्या हो जाएगा ओपनिंग हो जाएगा, अभी ये क्या हो जाएगा ओपनिंग। इसका मतलब ये है कि हमको जो करना पड़ेगा, हमको जो परचेज करना पड़ेगा लेग्स बाहर से जाके, वो 6520 परचेज करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द रॉ मटेरियल बजट, ये हमारा रॉ मटेरियल बजट कहलाता है, ये जो कैलकुलेशंस कहलाता है रॉ मटेरियल बजट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या डाउट हुआ बताएं। हेलो, नहीं, इसमें बस वही ट्रिकी बात यह है कि हमको शायद शुड वी टेक रिक्वायर्ड प्रोडक्शन और सेल्स, वही tricky है। nothing is tricky, you need required production, you need production not sales। if you have given sale then you have to recalculate, get the production first, then you have to start making the raw material budgets। is it okay? अब सेम ही क्वेश्चन है, उस पे हमको लेबर बजट बनाना है। तो क्वेश्चन को रीड करें। Hmm, 60. ये बेसिक लेवल पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। बी है क्या? बी तो है, लेकिन आपने कैसे किया? 1800 यूनिट्स है into 20, 36,000 minutes divided by 60, 600 hours
divided by 40 hours week. That requires for in a month 40 into 4 160 हाँ हाँ ठीक है, divided by 160. 3.75। यानी अगला हमसे पूछ क्या रहा था कि ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, अज्यूमिंग दैट रकत विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1800 यूनिट। तो सबसे पहले बोला कि 1800 यूनिट ही इज प्रोड्यूसिंग एंड ही इज रिक्वायरिंग 20 पर आवर। इसका मतलब है 36,000 मिनट्स एक्चुअली ही यूज। ओके, अगर इसको आवर्स पे लेते हैं तो इट्स कमिंग डिवाइड बाई 60, तो ये 600 आवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 600 आवर्स इज देयर। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेप्ट एम्प्लॉय कैन बी हायर्ड ऑन द पार्ट एज्यूमिंग 40 आवर्स वीक ऑफ 4 मंथ्स। इसका मतलब है कि एक महीना पे उसके पास जो 160 आवर्स अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल आवर्स होते हैं। तो हमको क्या पूछ रहा था, हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि हमको बताना है कि वो कितने एम्प्लॉयज वो लेगा बाजार से। तो उसके लिए उसको एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। एक एम्प्लॉय 160 आवर्स काम करता है, इसका मतलब है कि ही हैज टू हायर 3.75 एम्प्लॉयज। He has to hire 3.75 employees. Or if the answer is given 4 in the question, you can answer 4. ठीक है, बट ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था। मिराज भाई, हाँ भाई। यानी जो पिछला चैप्टर था उसमें हम्म, डिफरेंसेस देख रहे थे, यानी यू आर फाइंडिंग आउट द वेरिएंसेस। जी बिल्कुल। तो ये प्रोडक्शन बजट में भी कैलकुलेशंस है, उसमें भी है, तो दोनों में डिफरेंस, यानी यहाँ पे ये वेरिएंसेस नहीं है बस। नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ बजट बना के देते हो सामने वाले को, इसमें आपको वेरिएंसेस नहीं है। ये वेरिएंसेस के सवाल नहीं है, यहाँ सिर्फ आप बजट बना के देते हो। वो नेक्स्ट लेवल का काम है कि बजट बन गया, अब एक्चुअल आएगा। अब एक्चुअल जब आएगा तो चेक किया जाएगा, हाँ भाई कितना, हाँ भाई ये वेरिएंस के रीजन क्यों है। तो यहाँ पर हमको सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, ये चार चीजें बनाना है। 4 चीजें बनानी है। कैश बजट भी बनानी है, अभी मैं कैश बजट पे आऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले ये एक छोटा सा सवाल है, 2 मिनट का सवाल है, 23 नंबर सवाल, जो यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है, छोटा सा सवाल है 23। प्रोडक्शन बजट बनाना है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 पे प्रोडक्शन बजट बनाना है। हम्म, 400। 400, 400,000। 400 लग रहा है।
हो गया जी। तो कितना आया 400 है हाँ? हाँ बस बिगिनिंग इन्वेंटरी और माइनस 420 यूनिट्स ईच। भार्गवी आप बताओ। 1 मिनट सर, 1 मिनट बस। रोशन भाई आप भी बता ले। सर मेरे को बी आ रहा है। आपको भी आ रहा है होगा बी भी हो सकता है ऐसा क्या? तो आपका भी 400,000 ही आ रहा है ना। चलते हैं। तो बोल रहा है कि सब Safri expect the annual sale for the deluxe model C14 to be 402,000 यानी कि सेल्स लिखना है 402,000 ठीक है जी। ये सेल्स लिखना है ठीक है। बोल रहा है एट द रेट ऑफ 11 रिक्वायर्स द 3 परचेज्ड कंपोनेंट यानी जब C14 बनाते हो उसके अंदर आपको 3 कंपोनेंट लगते हैं। बट क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है। 3 का प्रोडक्शन बजट बनाना है ठीक है। तो हमको इस इनपुट से कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री लेबर, फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवर नहीं है ना। प्लान्स द फॉलोइंग beginning an inventory in the month of April and uses the standard objection costing। अब बात हो गया कि C14 पे सिर्फ हमको काम पे ध्यान देना है। तो C14 पे बोल रहा है कि भाई साहब आपने अप्रैल पे क्या रखना है? 1 अप्रैल पे 12,000 और 30 अप्रैल पे 10,000। इसका मतलब है कि 10,000 आपने क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है और आपने ओपनिंग कितने स्टॉक मेंटेन आपके पास है तो आप इसको दोनों को ऐड कर लो 4/12 हो गया। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक आपके हाथ पे क्या है? आपके हाथ पे है ओपनिंग 12,000 का। इसका मतलब है कि 400,000 आप प्रोड्यूस करोगे। तो आई बिलीव कि सब आदमी को ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है? ये सवाल पे किसी को डाउट है? नवीद भाई, नवीद भाई, आजम भाई कोई डाउट है उस पे? नो नो मिराज भाई सही है। सही है। जी रोशन जी भाई आपको कोई डाउट है? नहीं है तो इसी क्वेश्चन पे प्रोडक्ट B6 का परचेज बजट बनाना था जो क्वेश्चन ने नहीं मांगा है, हमने मांगा है। B6 का परचेज बजट बना के बताना है कि कितना अमाउंट आएगा, कितना B6 परचेज करना पड़ेगा। B6 का परचेज बजट बनाना है, प्लीज बताइए। टू लाख 1,000 है क्या? बी का बी का हाँ 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 ये प्रोडक्शन पता चला सही है। हर प्रोडक्शन करने पे आपको बी का कितना यूनिट चाहिए? तो 2 यूनिट चाहिए। बी का 2 यूनिट चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिखोगे यानी 8 लाख चाहिए। हाँ आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में कितना है बी?
10,000 है। हाँ इसका मतलब आपके हाथ में 8,10,000 चाहिए। उस पे आपके पास ऑलरेडी सिर्फ 32,000 है। अब जो आपको परचेज करना पड़ेगा वो कितना परचेज करने पड़ेगा? 778,000। और अगर पैसा पूछेगा तो पैसा हम 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब 1,94,500 रुपए का हमको बजट बनाना पड़ेगा when it comes to the dollar, when it comes to the dollar। बोले भाई? कोई दिक्कत है? भाई किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है मिराज भाई, क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए गलत आंसर दिया। हाँ बोलिए ना भाई। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। अभी आप समझ गए ना? जी। तो अगला सवाल आपके सामने है कि आप मेरे को D28 का डॉलर बजट यानी परचेज डॉलर बजट बना के दिखाइए। D28 का परचेज डॉलर बजट। $11,92,000। डी का ना? D28 का। हाँ जी सही। तो अभी यहाँ पर मेरा क्वेश्चन एक रेडी है, ठीक है। हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। हर यूनिट को बनाने पे मेरा 3 लगता है, लग गया। आगे मैंने देखा कि डी जब मैं बना रहा हूँ तो मेरे को क्लोजिंग क्या चाहिए? 6,000 चाहिए। मैंने 6,000 लिया। उसके अगेंस्ट में मेरे पास ओपनिंग कितना है? 14,000। तो मैंने 14,000 यहाँ माइनस कर लिया, ठीक है। अब मैंने देखा हाँ जी भाई मेरे को ये चाहिए 14,000 है। इसका मतलब कि बाजार से जब बाई करना पड़ेगा तो 1192 वी हैव टू बाई। हर बार बाई करने के लिए मेरे को कितना देना पड़ता है? 1 रुपया। तो आपने इतना बोला था क्या भार्गवी? हाँ जी सर, यही था। चलो गुड हो गया। तो यानी कि अब आप परचेज बजट अगर डॉलर में मांगे तो क्वांटिटी में मांगे तो अब आप आराम से निकाल पाइएगा। इज इट ओके? चले। अगला ये क्वेश्चन मांग रहा है कि A9 का बना के दिखाइए। ये क्वेश्चन है अगला। A9 का मांग रहा है आपसे। A9 का परचेज बजट बना के दिखाना है। बना सकते हैं? ये देखिए A9 का परचेज बजट बनाना है आपको। बनाए प्लीज, जल्दी यल्ला। $194,000। ऑप्शन में है क्या? नहीं पता नहीं, मैं तो देखा नहीं ऑप्शन। नहीं है ना? 400,000 $3,88,000। चेक करा जाएगा।
चेक किया जाएगा। अरे भाई कोई तो बता दें। 3,88,000. 3,88,000 डन हो गया ना? लॉक किया जाए। आई ये डोंट नो। यूनिट्स, ये यूनिट्स का है क्या आंसर? हाँ, 3,88,000 यूनिट्स, करेक्ट. चले, अब ये क्वेश्चन पे आता है कि अब आपसे मांग रहा है कि टोटल परचेज बजट बनाना है अगर आपने 4 लाख प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अब आपको ए बी सी डी सारे का बना के ऐड करना है वैल्यू। बना सकते हैं? हाँ भाई, बन गया। इसका क्या बनाना है मिराज भाई? प्रोडक्शन बजट. सब बनाना, प्रोडक्शन बजट बनाना। आंसर सी है, 1.6 मिलियन. हो सकता है। आंसर सी है क्या भार्गवी? सर अभी चल रहा है, 2 मिनट बस हो जाएगा। कितनी देर लग रही है? आपके लिए सी है? हाँ सही है।
सही है। चले, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑन सेल्स बजट। ठीक है, अभी मैं आई एम गोइंग टू गिव some of the question to attend. So इस पे कोई डाउट है? इस सारे प्रॉब्लम पे जो हमने करा आज के, कोई डिस्कशन पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो ना उनके छूट रहा हो, जो हमको डिस्कस करना चाहिए? हाँ भाई, ये पहला दो पार्ट हो मतलब जो बजट का जो बेसिक जो चारों प्रोडक्शन बजट हो गया या लेबर बजट हो गया या फिर परचेज बजट हो गया, ये अभी तक 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हमारा हमने करा है। इस पे कोई डाउट है? ये तो मैं पहली मर्तबा ही कर रहा हूँ मिराज भाई, यानी इसकी थ्योरी भी बराबर नहीं पढ़ा मैं, प्रैक्टिकल में नहीं न्यूमेरिक्स है बल्कि अभी मालूम पड़ा मुझे इसमें। नहीं, अरे लास्ट दो दो दिन हम लोगों ने पूरी स्लाइड डिस्कस करी है, कम से कम 20 टाइप के, जिसमें हमने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स के बारे में बात करी है, ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार उसको देखिएगा, रीड करके अगर कुछ समझ आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो और भी ठीक है, हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो एक छोटा सा सवाल, चलो मैं आपको एक चीज़ें बता रहा जिसको हम बोलते हैं कैश बजट। ये क्वेश्चन नंबर आप 21 देखो, एंड आई विल डिस्कस विथ यू कि आप कैश बजट जब बनाते हो तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये एक बार क्वेश्चन नंबर 21 देखो, मैं आपको सिखाऊंगा कैश बजट में आप क्या क्या लेते हो, कैसे कैसे लेते हो। देखें, सबसे पहले जब हम कैश बजट बनाते हैं तो मेरे को कैश बजट जब हम बनाते हैं तो मेरे को क्या लेना पड़ता है, ऊपर में इनफ्लो लेना पड़ता है, यानी पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, यहाँ वाला पार्ट इनफ्लो आता है। सबसे पहले आता है ओपनिंग कैश बैलेंस, फिर आता है, फिर हम इसमें लेते हैं
कैश सेल्स कैश सेल्स। दूसरा आता है हमारा कलेक्शन फ्रॉम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तीसरा आता है सेल ऑफ एसेट। चौथा आता है, आई एम नॉट जस्ट टेकिंग सम लिस्ट, कमीशन रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। ये आ गया। तो ये वाला पार्ट हम लोग का इनफ्लो कहलाता है, कैश इनफ्लो, ये वाला पार्ट हमारा। नेक्स्ट पे आता है परचेज, कैश परचेज, कैश कैश परचेज, पेमेंट टू वेंडर, और आता है हमारा वेजेस पेमेंट, और आता है हमारा अगर कोई ओवरहेड या एक्सपेंसेस पेमेंट है। पेमेंट है तो वो सब आता है, ठीक है। या फिर परचेज ऑफ असेट्स अगर कुछ तो भी आता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आउटफ्लो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कैश आउट। अब जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, अब यहाँ पे हमको कहलाएगा कैश इन हैंड। अब इसको हम, हमारे पास बचता है कैश इन हैंड, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो इस यही एक्चुअल में दिस इज द फॉर्मेट वी हैव टू फॉलो। अब बात आती है कि कलेक्शन का पैटर्न हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर में हमको नहीं पता होता है कि पैटर्न, इसमें हमें पैटर्न समझना होता है। मान लो करंट मंथ में कितना मिला, सब्सिक्वेंट मंथ में कितना मिला, सेकंड थर्ड मंथ में कितना मिला, तो ये पैटर्न वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक अगर कोई पूछे तो आपके पास कैश फ्लो का सिर्फ यही फॉर्मेट होता है। जब आप कैश बजट बनाते हैं तो आपका कैश बजट इसी फॉर्मेट में बनता है। सो दिस इज द बजट, कैश बजट का फॉर्मेट ये होता है, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम में कोई एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन रह सकता है, इधर दे कैन आस्क फॉर कलेक्शन पे कोई पैटर्न पे मांग लेगा, पेमेंट के पैटर्न पे मांग लेगा, या क्लोजिंग बैलेंस आपसे पूछ लेगा कि एंड ऑफ द डे क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, या फिर ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। तो ये सारा ऊपर का ऐड होगा, ये वाला नीचे का सब ऐड होके माइनस होके जो बचेगा वो मेरे पास कैश इन हैंड हो जाएगा। और अगर माइनस में आता हो और बैंक और कंपनी के पास अगर लोन की फैसिलिटीज हो तो कंपनी कैन बोरो इट फ्रॉम द आउटसाइड। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा बात पूछा हमसे कि ये बताइए कि मई में आपका कैश कलेक्शन क्या होगा, आपके पास टोटल कैश इनफ्लो क्या होगा इन द मंथ ऑफ मे। ये सिर्फ वन पार्ट है इस पूरे स्ट्रक्चर का। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो तो ये आ गया, ये आ गया। हाँ, तो सबसे पहले बोल रहा है कि हाँ जी भाई, हिस्टोरिकली पाइन हिल्स वुड मैन्युफैक्चर products has no significant bad debt experience with the customer, so cash sales आज जो है वो 10% है। तो अभी जो सेल करता है उसका वो 10% कैश सेल है, और पेमेंट जो है बाकी जो हो जाता है पेमेंट किस पे होता है, क्रेडिट पे होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उसका कलेक्शन पैटर्न ये है कि 40% अभी मिलेगा, 30% जो है इन द मंथ ऑफ सेल में मिलेगा, 30% फर्स्ट मंथ में, 25 सेकेंड मंथ में, और थर्ड जो है मतलब सेकेंड मंथ में, और फिर 5% लास्ट वाले मंथ में। यानी आप देखिए 40, 30, 70 और 70 और 20, 95 और 500 हो गया आई थिंक।
100 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट सेल का 100% मांग रहा है, क्रेडिट सेल्स का पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमसे मांग किस मंथ का रहा है, हमसे मांग रहा है मई का। तो सबसे पहले जब हम मई का बनाएंगे तो 2 तरीका होता है इसको करने के लिए। अगर हमसे आप पूछेगा तो मैं आपको सबसे आसान सा और एग्जाम ओरिएंटेड तरीका बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मई का पूछ रहा है, तो मई में आप एक बार मई में कैश सेल लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है, कैश सेल ऑफ मई लिख के छोड़ दीजिए। तो मई पे आपका कितने का कैश सेल है जी, 85,000 का सेल है, और 85,000 का 10% कैश पे होता है, तो आपने 85,000 का, तो मई में पहले पैसा कहाँ से आएगा पहले, तो ये मई के ऊपर अप्रैल, मार्च, फरवरी। देखिए पैटर्न क्या है, 40% मंथ ऑफ सेल पे, यानी हम यहाँ पे अगर आगे अगर कैलकुलेट करें तो 40% जिस मंथ पे सेल हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट मंथ, तो यानी जो फरवरी का पैसा है वो आगे मार्च पे मिला होगा फर्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट मंथ पे, फिर उसके बाद बाकी जो थोड़े से होंगे वो किस पे मिलेगा, अप्रैल पे, बाकी जो थोड़े बच जाएंगे वो किस पे मिलेगा, मई पे। तो ये आपको खाली एक बार समझने का है कि ये देखिए ये आपको किस मंथ से आपको कलेक्शन स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको ये लैंग्वेज खाली पढ़ना जरूरी है। ये सब्सिक्वेंट फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ, फिर सेकेंड मंथ, फिर थर्ड मंथ, यानी अपने से हम 3 महीना पीछे जाएंगे। अपने से कितना महीना पीछे जाएंगे, 3 महीना पीछे जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 40% तो हमको जिस मंथ में हम सेल हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम बता दें कि मेरा कैश सेल कितना है। अगर मेरे पास कैश सेल है 10% है, तो बाकी क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी कैश अगर 10 है तो ये बाकी क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। अब बोल रहा है जो फरवरी वाला है वो जो है 5वें महीने में कितना, सिर्फ 5% देगा। तो जो फरवरी वाला बंदा है, और यहाँ सिर्फ सेल्स मेरे को कॉपी करनी है, सेल्स है कितने की, फरवरी की 65,000, तो 65,000, उसके बाद 70,000, 70,000, फिर उसके बाद क्या है 80,000, 80,000, फिर क्या है 85,000, 85,000। तो ये हमारा सेल है। अब जो बंदा फरवरी में हमको सेल करा होगा उसने अब सिर्फ 5% हमको देने हैं, तो वो किसका 5% देगा, ये सेल का। तो ये हम 0.1, 0.9 कर लेते, यानी कि हमको कितना परसेंट देने वाला है, 5% देने वाला है फरवरी वाला बंदा है। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर जाएंगे, यानी कि बाकी जो बंदा मार्च में सेल किया होगा वो मेरे को कितना परसेंट देने वाला है, 25% देने वाला है, तो हम 25% लिख लिया। फिर मेरे पास जो है अप्रैल वाला कितना परसेंट देने वाला है, 30% देने वाला है, तो 30% हमने लिख लिया। और जो महीना में हमने सेल करा था वो मेरे को कितना परसेंट देने वाला है, 40% देने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 65 का 90% का 5%, यानी कि ये कलेक्शन होगा, एक्चुअल में ये कलेक्शन होगा। 65,000 का 90% क्रेडिट सेल का 5% कलेक्शन, 70,000 का 90% क्रेडिट सेल उसका 25% कलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद 80,000 का 90% क्रेडिट सेल, देन 30% कलेक्शन। तो इसी तरह हम सेल पे जाके मई में देखेंगे 85,000 इज द सेल, उस पर हमने क्रेडिट सेल कितने का किया, 0.9% का किया, यानी 90% का क्रेडिट सेल है, उसका 40% कलेक्शन आ जाएगा। बट मई में एक और चीज है हमारे पास, बताइए क्या, मई में हमारे पास कैश सेल भी है। तो ये तो हमारा कलेक्शन वाला पार्ट था, 8,500। हाँ, अब कैश सेल भी है हमारा, तो हम डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कैश से। तो टोटल कलेक्शंस अगर हमसे कोई पूछा
तो हम आराम से बता सकते हैं $79,375 हमारा कैश कलेक्शन हो गया। एग्जाम में सबसे आसान सा तरीका यह है कि आप इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं करें। आपको जिस मंथ में लेना है उससे सिर्फ पीछे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई कौन से महीने से हमको कलेक्शन कलेक्ट करना है, वहाँ चले जाइएगा। साथ में क्वेश्चन में लैंग्वेज को देखिएगा, वो आपसे टोटल सेल्स का परसेंटेज मांग रहा है या क्रेडिट सेल का परसेंटेज मांग रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, क्रेडिट सेल वाले को टोटल ऐड करके चेक कर लीजिएगा। तो आपको क्रेडिट में अगर पूरा 100 मिल गया, इसका मतलब है कि ये सिर्फ क्रेडिट वाला का सेल का। कभी कभी ये लाइन नहीं भी देता है, तो हम ये इसलिए एक बार ऐड करके चेक किया। वैसे यहाँ पे क्लियर दे दिया था कि क्रेडिट सेल का कलेक्शन है, तो क्रेडिट सेल हमने निकाल लिया। तो क्रेडिट सेल के अगेंस्ट जो कलेक्शन था हमने कलेक्शन ले लिया, और जो कैश सेल जिस करंट मंथ का कैश सेल था तो वो हमने कैश में ले लिया। अब हम जब दोनों अमाउंट को इंक्लूड करके चेक करते हैं तो मेरे को 79,375। एग्जाम में क्या हो सकता है, वो किसी एक पार्टिकुलर मंथ का पूछ सकता है। एग्जाम में पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ 1 मंथ बोल देगा, या ये बोल देगा कि बताओ कि मार्च का पैसा मई में कितना कलेक्ट होगा, मार्च का पैसा मई में कितना कलेक्ट होगा। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन प्ले, बट अल्टीमेटली आपको समझना ये है कि जो आपने सेल करा है उसको आपको स्प्लिट करना है कैश और क्रेडिट में, और जो क्रेडिट के अगेंस्ट में आपका कलेक्शन है उस कलेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है भाई, तो ये एक कैश बजट से रिलेटेड चीजें थी। अब मैं आज कुछ क्वेश्चन अभी मैं भेज रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, अगर बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात